What does it actually take to build a startup from scratch? Not the romanticized version you see on Instagram. I'm talking about the real process. Funding, hiring, failures, sacrifices. The stuff that no one really tells you on the internet. This video is going to be a bit different. I met the founder of Smallbuzz and asked him some insider questions. Things like how to get funding, how to hire your first people, does a degree actually matter in startup, and a lot more that you should know if you are planning to build something of your own, or if you simply want to understand what it truly takes to start from zero. Before we jump into the rapid fire question, let me introduce you to the founder. He is Ankush Raj. After facing multiple failures across different startup attempts, he never stopped. And while talking to him, I noticed one rare thing. Something that I believe is non-negotiable for anyone trying to build big. A growth mindset. Where most people quit after one or two failures, he kept creating, he kept building, and now he's building Smallbuzz. A new intercity travel solution operating within a range of 100 to 300 kilometers, priced roughly equal to a medium pizza, but offering comfortable seating, no crowd chaos, and a premium travel experience inside a bus. Almost like a starship on wheels. On day 19 of my 99-day hard challenge, I went to meet them. Took a local train and it was a completely mess. After reaching Patna, I booked a Rapido and headed straight to their location. They were in the middle of shifting their office, so the setup was a bit away from the main town. After 10 minutes, I finally reached, meet the team, and they were genuinely grounded and real. I talked to them, shared my thoughts and experience too. I had a long conversation with Shivans, who is the operation manager at Smallbuzz. We exchanged insights and I have got some hardcore consultancy that's going to help me a lot. So thank you very much, Shivans, if you're watching this. We even went on a walk together discussing Smallbuzz goals, viability and execution. I spent one whole day with them and I could see the focus. These guys are actually working on it, not just talking about like most do. I couldn't meet the entire team because the office was still in shifting mode, but once they fully settle into their new space, I will show you their full setup, operation and working culture in another video. Alright, now it's time to move to the questions. Don't skip anything in between because even one missed line might cost you an important insight. I'm with actually the Smallbuzz founder. मैं भाई अंकुश के साथ हूँ अभी और हम लोग कुछ सवाल जवाब करेंगे इनसे. What about Smallbuzz? क्या है वो और Smallbuzz क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? इनसाइट्स लेने की कोशिश करूँगा जो आपको हेल्प करेगी इन चीज़ों को बिल्ड करने में. अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो या फिर अपने आप को और बेटर बनाना चाहते हो किसी चीज़ में, किसी फील्ड में, तो पहला क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए वो है What made you think that this is the idea, this is the one idea that we should work on? क्यों आपको ये लगा कि मेरे को ये करना चाहिए? बेसिकली क्योंकि पटना में रह रहे हैं और मेरा पर हमको ट्रेन से आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है. ट्रेन का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, कंफर्टेबल नहीं है और प्राइस का भी वही चीज़ है, थोड़ा कम है लेकिन कंफर्टेबिलिटी नहीं है, लोग ज़्यादा भीड़ हो जाता है. मेरे लिए वो तो सही नहीं है. साथ साथ में मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा एक ऑप्शन चाहिए था, जो चीज़ ऐसा हो कि कुछ कंफर्टेबल रहे, थोड़ा पैसा तो चलेगा और कैब से कुछ सस्ता हो. कैब जो 3-4 हज़ार रुपये लग जाता है तो उस चीज़ से सस्ता हो और उसी टाइप का कुछ ऐसा हो. इसलिए कुछ Smallbuzz स्टार्ट किया, पोस्ट ट्रैवल टाटा रेंज टाइप के बस हम लोग काम. मैंने भी ये प्रॉब्लम्स बहुत फेस की है कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं राजगीर से पटना आता हूँ कभी, तो मेरे पैसे खर्च होते हैं बहुत और राइड कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता है. हेल एक्सपीरियंस होता है मेरे लिए. तो ये एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जो कि लिटरली अगर बड़ी स्केल पे देखा जाए और हमारे जो रिमोट एरियाज उनके लिए देखा जाए तो बहुत ही हेल्पफुल है. इस आइडिया को लेकर के बहुत क्यूरियस था कि मैं इनके बारे में और जानूँ और इनसे मिलकर मैं बहुत सारी बातें करूँ. हाउ डू यू फंड ऑल योर ऑपरेशंस? बहुत सारे तरीके हैं. शुरुआत में तो आपको घर से लगाना पड़ेगा. हाँ, खुद पैसा है तो आपने कुछ लगेगा. फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू प्रीसीड फंड उठाइए या कोई दोस्त आपका वैसा भी पैसा दे सकते हो. अगर कोई फैमिली मेम्बर है आपका उससे पैसा उठा सकते हो. उनको आइडिया अच्छा लगेगा, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि हम ये काम करो. अगर उनको अच्छा लगेगा फंड करें. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो अपनी तरफ से बता रहे हैं वो बूटस्ट्रैपिंग. बूटस्ट्रैपिंग एक तरीका है जो खुद के पैसे यूटिलाइज करते हैं हम लोग अपने आइडियाज़ हैं जो भी हमारा क्रिएशन होता है उस पर वर्क करने के. और बूटस्ट्रैपिंग सबसे बेस्ट वे है अपने आइडियाज़ को टेस्ट करने के, क्योंकि अगर आप उसके लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो सम सॉर्ट ऑफ दूसरे के पैसे लेके आप नहीं कर पाओगे सर. तो बूटस्ट्रैपिंग इज द नंबर 1 प्रायोरिटी. भैया ने वही चूज़ किया. बात करने के लिए वो सही है लेकिन आपको वहाँ पर तो फंड उठाना श्योर वो बात में भी आप हो सकता है कि बूटस्ट्रैप से चला सकें, जैसे जीरो चला रहा है, जो चला रहा है, लेकिन कुछ तरीके का बिजनेस होता है जहाँ पर आपको फंड उठाना पड़े. गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वहाँ से जब पैसे उठा. बूटस्ट्रैपिंग
आपको एक हेड स्टार्ट दे सकता है, बट फुल फंडिंग के लिए आपको रीच आउट करना ही पड़ेगा। डज डिग्री रिक्वायर टू बिल्ड अ स्टार्टअप? नो, इट्स डेफिनेटली नो, क्योंकि हमें स्टार्टअप बनाने के लिए बस एक आइडिया का काम होता है, एक पर्सपेक्टिव का काम होता है। उसमें अगर आपका पर्सपेक्टिव, आपका सोच है उस तरीके का, कैसे बना सकते हैं, बस वही चीज़ है। ओनली कंसिस्टेंसी मैटर्स, बाकी किसी चीज़ का नहीं है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो कुछ भी चीज़ सीख के भी बना सकते हैं और किसी को सिखा भी सकते हैं, सिखा के बना सकते हैं। थ्रू आउट द जर्नी ये इम्पोर्टेंट नहीं करता, मैटर नहीं करता। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि 10 डिग्री रिक्वायर और नॉट, मैं तो ऐसे स्टार्टअप करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, तो लेकिन डिग्री का क्या, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं तो छोटा हूँ, मेरा 19 एज है या फिर 18 में हूँ। ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आपको सॉर्ट आउट हो चुका है कि ये इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट आर द मेन क्वालिटीज दैट समवन नीड टू हैव इन ऑर्डर टू मेक और बिल्ड द स्टार्टअप? क्या क्वालिटीज आपको लगती है कि चाहिए होता है? लर्न कंसिस्टेंसी, केवल सीखिए और कंसिस्टेंट रहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग इसे मिस कर देते हैं, जो बेसिक्स होता है इसे मिस कर देते हैं कि यार मेरे को सीखना नहीं है, मैं तो जान गया। बट यह जैसे पता है कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूस लर्निंग से हम लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं, जैसे स्टार्टअप रिलेटेड। आई थिंक भैया का ये 5th बिजनेस होने वाला है। भैया उस पर बहुत सारे और बिजनेस में काम किए हैं और आपने खुद स्टार्टअप भी बिल्ड किए बहुत सारे। ये ऑल्सो वर्क फॉर द ओन कार्ड, ये बिल्ड हिज ओन एप्लीकेशन नाउ, and right now he is working in small biz and trying to make it a big company. So the next question that is for people actually, that how small biz can help people? So basically, if you travel from the train, the main concern is comfort. Yeah. The way you travel, the way you stand on the trains, किस टाइप का होता है, उस तरीके का होता है। बहुत भीड़ होता है, बहुत रश है वहाँ। उस चीज़ में देखते हुए मैंने स्मॉल स्टार्ट किया। बाकी कैब भी जो होता है वो आप कंफर्टेबल तो है, सारा चीज़ भी बढ़िया है, लेकिन आप कैब करते हो तो आपको कम से कम 100 किलोमीटर के 3 से 4 हज़ार पड़ता है, वो चीज़ का नहीं पड़ेगा, लेकिन सारा कंफर्ट सेम रहेगा। क्योंकि स्मॉल बस का पूरा मोटिव ये है एक बेटर राइड प्रोवाइड करना, एक कंफर्टेबल जर्नी प्रोवाइड करना, कि लोगों के पैसे ज़्यादा बर्न ना हो। एक तरीका होता है कि अगर मैंने इतने पैसे दिए और उसका मेरे को क्वालिटी मिला, और ये रेलवेज़ में या फिर जो नॉर्मल बसेस होते हैं उसमें नहीं होता है। मैं खुद आता हूँ तो मैं मेरे पैसे बहुत खर्च हो जाता है। बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन लगा इस चीज़ के लिए, इसलिए मैंने इनसे कनेक्ट किया उस चीज़ के बारे में। मैं आगे और मेंशन करता हूँ कुछ क्वेश्चन। सो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आप लोग का राजगीर में या फिर दरभंगा में वगैरह ऑपरेट करेंगे? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने के नए रूट्स ऐड करें। वी आर वर्किंग विद मैनी रूट्स, वी आर वर्किंग विद मैनी बस ऑनर्स कनेक्ट करें, और हम लोग कुछ बस खरीदने का भी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपना भी कुछ ऑपरेशन चलता रहे, प्रॉब्लम ना हो। तो राजगीर के लिए तो हमारा प्रियोरिटी है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैवलर्स ज़्यादा हैं, वी आर ट्राइंग, क्योंकि वो फ्यू स्पेस है और आगे आने वाले टाइम में राजगीर बहुत ही बहुत बन रहा है। हम लोग वर्क कर रहे हैं, जल्द से जल्द उसमें भी ऐड करें। तो अगर इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम राजगीर देन इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ट्रैवल वे। बहुत अच्छा। विक्रम इज ऑल्सो फ्रॉम द राजगीर। या मैं खुद राजगीर से हूँ और मेरे को वो कमी महसूस होती है उस कंफर्टेबल ट्रैवल की, तो आई नो व्हाट इज़ ऑल अबाउट। तो ये बहुत ही अच्छा है, भैया जल्दी से ऑपरेट करेंगे, कोशिश करेंगे स्मॉल बस हमारे सिटीज़ में आए। ये एक हायरिंग पर्सपेक्टिव से है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं स्टार्टअप तो कर लूँगा लेकिन हायर कहाँ से करूँगा। सो हाउ डू यू हायर अ गाय? आई मीन क्या पर्सपेक्टिव है, आप क्या क्वालिटी देखते हो उसमें एज अ हायर करने? सेम चीज़ कंसिस्टेंसी। एक चीज़ थोड़ा एक बेसिक तो नॉलेज होना चाहिए जिस फील्ड के लिए हम हायर कर रहे हैं, जिस चीज़ फील्ड के लिए हायर कर रहे हैं उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर वो बंदा कंसिस्टेंस नहीं है तो उसका कितना भी नॉलेज है काम करने में, अगर वो कंसिस्टेंस है हम उसको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। प्लस ये वो खुद भी सीख सकता है, कंसिस्टेंसी के दौरान बहुत सारा चीज़ वो करता रहेगा तो सीखता रहेगा। ये बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स एंड ऑल के चक्कर में रहते हैं कि यार मेरे को शॉर्टकट चाहिए, बट कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है, भैया बहुत बार कंसिस्टेंसी टर्म्स यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमें बहुत इंपॉर्टेंस होती है वो लोगों की जो कंसिस्टेंट रहते हैं वर्क में और फ्लो में चले, ना कि आज मैंने इतना काम किया कल मैंने इतना काम किया। अगर आपके पास सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं और कंसिस्टेंट लोग, कंसिस्टेंट को लोग ज़्यादा चूज कीजिए, इसलिए
क्योंकि वो टैलेंटेड है लेकिन अचानक से अगर गायब होता है तो आपका पूरा काम रुक सकता है और उसके वजह से फिर से आपको रिपीट दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर कंसिस्टेंट है 100% के बजाय 10% देता तब भी वो काम रुक नहीं रहा, तब भी चल रहा है। The whole matter is the slow and steady win the race. चलो कोई नहीं, मेरे पास टैलेंट एक्विजिशंस होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अपने आप को टैलेंटेड मानते हैं, बहुत सारे लोग होते भी हैं, बट उन पे हासिल करने से अच्छा वो जो लोग क्रिएटिव हैं, जो कंसिस्टेंट है अपने वर्क में और वो सीखना चाहते हैं कि मेरे को और सीखना है इनसे, भले मैं पूरा नहीं जानता, तो वो लोग को हायर करना इज़ बेटर अकॉर्डिंग टू भैया। वो बता रहे कि वो लोगों को मैं ज़्यादा हायर करने की कोशिश करता हूँ जो कंसिस्टेंट रहते हैं अपने वर्क में, रादर देन टैलेंटेड या फिर रादर देन एक्सट्रीम क्रिएटिव है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बट कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट। बहुत लोगों को हायर करना पड़ेगा, एक कुछ टैलेंटेड लोग हैं जो आपको उनका काम निकालना पड़ेगा उनसे, वो चीज़ उनको चाहिए, आपको चाहिए। प्लस अगर वो बंदा कंसिस्टेंट है बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं है फिर इसको रखना पड़ेगा साथ साथ में कंसिस्टेंट बंदा है ताकि उसको भी ऑपरेट करना पड़े साथ में चलता है। एक कंसिस्टेंट तो मैटर ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वो थोड़ा माइंड रिलेटेड है, ये माइंड भी आपको टेस्ट करे कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप कुछ मारेगा और नहीं। सो दिस क्वेश्चन इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इफ स्मॉलेस्ट फेल्स, व्हाट इफ यू थिंक दैट स्मॉलेस्ट फेल्स? I don't think it will fail, but if it fails, there are many things to do. मेरे पास बहुत कुछ है करने को, मैं इसमें बहुत कुछ सीखूंगा और जो नेक्स्ट स्टार्टअप होगा उसमें भी अप्लाई करूँगा, बट आई थिंक इट विल नॉट फेल क्योंकि ये अच्छा आइडिया है मेरे हिसाब से, मे बी फॉर सम बट आई थिंक इट विल नॉट इट विल फेल। मैं बहुत कुछ सीखूंगा, मैंने 4 महीने से बहुत कुछ सीखा है, पहले भी किया है, वो सारा चीज़ यहाँ पर अप्लाई करना और इससे कुछ सीखूंगा। So is on that. If it fails, then I'll do something else. I will just learn from it and work on other things. Because improvement का नाम ही है failure. अगर आप फेल नहीं कर रहे हो, आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो। अगर मैं सीख ही नहीं रहा कुछ उससे, तो फिर मतलब ही क्या है? अगर वो फेल होता है तो फेल नहीं होता है, आप उससे कुछ सीख के सही बात, वो लर्निंग आपको दिखता ही है, वो 100% आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि rather than या भैया इज नॉट सेइंग दैट मैं ये प्लानिंग फेल हो जाएगा, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट आइडिया, आई रियली एडमायर इट एंड मैं इनके साथ काम भी कर रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ को एक अच्छे वे में समझाना है रियलिस्टिक अप्रोच में कि इफ इट फेल्स देन आई विल वर्क ऑन समथिंग एल्स, आई विल ट्राई टू डू समथिंग एल्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव फ्रॉम द पास्ट सेल्फ। सो एक बेटर अप्रोच है, ये एक लर्निंग फेज और ग्रोइंग पर्सपेक्टिव है माइंड का। फेल वर्ड ही खराब हुआ या वो फेल वर्ड ही खराब, वो लर्निंग है, वो फेलियर नहीं है। तो सपोज मैं एक इंसान हूँ जो आपका वीडियोज एंड ऑल, मैं स्मॉलर से इंस्पायर है आपके लिए, सम काइंड ऑफ एडवाइस दी कि आप कैसे स्टार्टिंग नहीं कर सकते, आप कैसा अगेन सेम बी कंसिस्टेंट, कुछ भी कर रहे हो सीखना है कंसिस्टेंट, वो हम सेम कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट हो, मैं भी किसी इंसान के लिए 6 महीने लगता है सीखने के लिए, आपके लिए 2 साल 3 साल लगेगा, लेकिन जो वो सीखोगे ना, छोटा छोटा छोड़ के फिर स्टार्ट करें, छोड़ के फिर स्टार्ट करें, सीख नहीं पाओगे। अगर कंसिस्टेंट रहो 10% सीखते हो, 20% सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो। अगर स्लो हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन करते हो सेम चीज़। ऐसे मैंने कहीं पर देखा कि पानी गिरते रहता है, तो जो ज़मीन होता है एक बार गिरता है और कुछ नहीं होता, लेकिन जब पानी गिरते रहता है तो पूरा गड्ढा कर देता है और नीचे तक गड्ढा होता है और किसी जगह पर पत्थर को काट देता है। ये है, ये एक मॉडर्न लेसन है कि कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स द टैलेंट एंड बहुत ही मैटर करता है कंसिस्टेंसी। मेक अ स्टार्टअप वांट टू क्रिएट समथिंग, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दैट फील्ड। और किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंट काम करेगा, 100% करेगा। ये मैं भी मानता हूँ। हाँ, क्योंकि अगर वो चीज़ अगर है दिमाग में वही चल रहा है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ आके आपको बताएगा। अपॉर्चुनिटी वो सारी उसी में डायरेक्ट है जाती है, तो लाइफ की लाइन्स वही बैक हाँ, वही सारी चीज़, कोई ऑप्शन इधर से आएगा, कोई ऑप्शन इधर से आएगा, लेकिन काम करेगा। ये वर्क करता है, मैंने भी ट्राई किया है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं ट्राई करता तो मैं स्मॉल के साथ में बात नहीं कर पाता। लिटरली मैंने ट्राई किया कि मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए, मेरे को लोगों से मिलना है, देन आई ट्राई, और ये चीज़ वर्क करती है। तो मैं भी इसका एक एग्जाम्पल मेरे के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि ये 100% सही है। किसी भी फील्ड में आप कुछ भी कर रहे हो, सपोज यू आर एडिटर, सपोज यू आर वीडियो कंटेंट क्रिएटर, और यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना ही होगा, उसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है।
you don't have to be most talented. You have to be just consistent. You have to show up every day. अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो एक टाइम के बाद आप मोस्ट टैलेंटेड बन जाओगे। या 100% ये है, ये ज़रूरी है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, बी कंसिस्टेंट हो गए वर्क, चीज मत करो उससे और काम करो। एज अ स्मॉलेस्ट का इंटर्न हूँ अभी के लिए, और मैं भी अगर मैं स्टार्टअप कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, उसमें मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। रिसर्च, कनेक्शन, फंडिंग या फिर रियलिटी। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है वो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है? इन सबको हटा के मेरे को इस पर फोकस करना चाहिए सबसे ज़्यादा एक स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप के लिए टीम बिल्डिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हर एम्पायर चीज़ के लिए आपको अलग अलग टीम चाहिए, और वो टीम वो आप जो बोल रहे हैं वो पूरा टीम आपको करना चाहिए, आपका टीम को कोशिश करना चाहिए। साथ साथ में आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा टीम के साथ, और टीम को जो है आप जो विज़न चाहते हो एक्चुअल वो विज़न आप उनको दो, उनको ये करना है वो चीज़ करेंगे, और सारा टीम करते हैं। वो हर ब्रांड का, हर बिजनेस का आप जब भी टीम बना रहे हो वो टीम को आपका जो विज़न उनको दिखाओ, अपने आँखों से दिखाओ कि वो काम करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोगों को कनेक्ट करना। इससे मैं बहुत सारे वीडियोज़ में मैं बोलता हूँ कनेक्शन बिल्ड करो, कनेक्ट करो, एंड दिस इज समथिंग दैट रियली यू शुड हैव टू फोकस ऑन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कनेक्शन बिल्ड करना, क्योंकि आप जब तक कनेक्शन नहीं बिल्ड करोगे, लोगों से सीखोगे नहीं, उनको डायरेक्ट करना नहीं, उनको एक प्रॉपर एक सेटअप बिल्ड करना नहीं सिखाओगे, तब तक आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे उससे। आप हर चीज़ अपने से नहीं कर सकते। यू नीड पीपल, यू नीड मोर स्मार्टर पीपल देन यू, मोर टैलेंटेड पीपल देन यू, जो तुम्हें बता सके कि आप ये करना चाहिए rather than this। तो वो एक टीम बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा चीज़ ये है टीम बनाना इसलिए भी चाहिए क्योंकि आप जो जानते हो वो हो सकता है कि छोटे छोटे चीज़ हर फील्ड से जानते हैं, लेकिन अगर आप टीम बनाते हो तो उस फील्ड का वो मास्टर है, या प्रोफेशनल्स मिलेंगे, परफेक्शन है उसके पास, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ साथ में वो जो है अपना परफेक्ट अपने फील्ड करें। टीम को बिल्ड करना सीखे और कैसा लोगों को आप हायर कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसको ध्यान दें। इवैल्यूएशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएट आपको करना पड़ेगा खुद को। लगभग मैंने सारे क्वेश्चन वहीं से पूछ लिए जो मेरे को एज अ बेसिक में लगा था कि मेरे को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं जानते स्टार्टिंग में, वो डायरेक्ट रश करते हैं कि यार मेरे पास आइडिया है और मैं बस बिल्ड करता हूँ, मेरे को फंडिंग बस करेक्ट करनी है, बट बस रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग, रियलिटी कुछ और होती है। तो भैया ने से बताया कंसिस्टेंसी मैटर्स और कनेक्शंस मैटर। आपको अगर फंडिंग चाहिए तो बहुत सारे वेज है, सर्टन वेज है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। फिर अपने जो अपनी टीम होगी उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना पड़ेगा। भाई स्टिल हायरिंग सम पीपल, उनको भी और भी टीम की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ सोशल सोसाइटी, इफ यू आर समवन हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड वांट टू कनेक्ट विद स्मॉल बस, इफ यू हैव सम आइडियाज एंड क्रिएटिव आइडियाज फॉर द स्मॉल बस, यू कैन जस्ट कनेक्ट विद देम। इंस्टाग्राम पर आप कनेक्ट कर सकते हो, या मैं उधर सारे लिंक्स और सारे चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में मैनेज कर दूँगा। और सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड वे टू step into something that is going to be the next big icon or maybe the next big startup, because this is a really good solution for a very big problem। मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को बहुत परेशानी होती है। सपोज आप लोग भी अगर कुछ रूरल एरियाज में कनेक्ट करते हो तो आपको वो प्रॉब्लम झेलने को मिलते होगी, मल्टीपल कैब्स, मल्टीपल ऑटोज, मल्टीपल बाइक्स आपको चेंज करने पड़ते हैं। बट थ्रू द स्मॉल बस आप एक कंफर्टेबल राइड, एक कंफर्टेबल सीट, आपको चार्जिंग फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे मेरे को पूरा लग्जरी मिल जाता है। तो अगर मैं उस चीज़ पे फोकस करूँ जो कि सपोज मैं अपने पैसे उस चीज़ पे इन्वेस्ट करूँ जो मेरे को एकदम अप टू मार्क मेरे को क्वालिटी डिलीवर करता है, तो वो बेटर होगा रादर देन मैं कहीं और पैसे बर्न कर रहा हूँ। सो दिस इज़ वेरी गुड आइडिया, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड आइडिया। मैं तो कहूँगा अगर इसको कुछ करना ही है, उसको 100% इसको और स्किल करना है। लेकिन तो grow this business, instead of creating another one, that would be very easy for me, leaving something. This is something that you should have to take on कि वो जल्दी एकदम नहीं होगा, मुझे कंसिस्टेंट रह के अच्छे वे में काम करना पड़ेगा, वो मैटर करता है। तो ये मेरे को सीखने को मिला कि बहुत सारे साइड न्यूज़ भी मेरे को पता चली, भैया मेरे को बहुत गाइड भी किया उस चीज़ के चक्कर में। मेरी टीम से बात की, उन्होंने भी बहुत गाइड किया, यू शुड हैव टू वर्क ऑन दिस, यू शुड हैव टू वर्क ऑन दैट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा प्रॉब्लम क्या है, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आपको
क्या सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। और द स्मॉल बस इज रियली सॉल्विंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड I need your help to expand it. Just try to be with them, try to connect with the small bus, what they were creating, what they want from you, and if you have some creative ideas, if you have some something to solve with the small bus, then you can just share it, and you can just tag the small bus that yeah, I have this idea, and you have to work on this. So आप ज़रूर कनेक्ट करो स्मॉल बस से, और आपको जितना इंसाइट्स चाहिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, और उसके बाद फिर आप कनेक्ट कर सकते हो। मैंने देखा है कि बहुत लोग इस रियलिटी को बताना नहीं चाहते, मुझे इंटरनेट में नहीं मिलता कि मैं स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता हूँ, वो कहता है ये करो वो करो, बट ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद मी कि ये करना इज इम्पॉर्टेंट, ये करना इज इम्पॉर्टेंट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं और इस काम करूँगा स्मॉल बस के साथ। मैं और भी शेयर करूँगा स्मॉल बस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है नेक्स्ट आने वाले मंथ्स में, और ज़रूर शेयर करूँगा आपको और भी सारी चीज़ें। बहुत सारे उनको काम होते हैं और इन्होंने मेरे को बहुत वैल्यूबल टाइम दिया उस चीज़ के चलने, तो इनका मैं थैंक यू करता हूँ उसके लिए। और जल्दी मैं एक और सीरीज़ लाऊंगा जिसमें मैं स्टार्टअप भैया क्या करते हैं, इस चीज़ को इंटरनली क्या प्रोसेस होते हैं, या फिर स्मॉल बस कैसे ऑपरेट करता है, एक इनसाइडर व्यू आपको देने की कोशिश करूँगा जल्दी ही। सो भैया मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी आऊँगा, मैं पूरा डॉक्यूमेंट करूँगा अच्छे से चीज़ें। तो बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था, थैंक यू भैया। I hope you got your answers, and if you have any more questions related to startup, execution or building something of your own, drop them into the comments and I will pick them for the next session. And if you are someone with skills and wanted to connect or collaborate with Smallbus, their LinkedIn and Instagram links are in the description. Go reach out and don't hesitate. Thank you for your valuable time. We will meet soon.